So hello class, I welcome you all in our next video of Prayag Public School for class 9, right? And today's topic is, or we are continuing with the same lesson, that is determinant. So if you remember, in our last video we have gone through the same chapter, right? Where we have studied the definition of determinants with examples, and at last we have also studied or gone through what is the difference between determinants and adjective, right? So till here we have studied in our previous class or in our next video. So our today's topic is types of determinants, right? So today we are going to study the types of determinants. How many types of determinants are there? So we are going to go through them one by one. So let's start with the first one, that is articles, right? So we are all very familiar with this word. What is articles? Articles are the words which are used before the noun, right? Whether it is countable noun, uncountable noun, singular or plural noun, right? So articles. So in articles there are three words which are primarily used: a, and the, right? So articles. They are the words which are used before countable noun, singular countable noun, plural countable noun, and uncountable noun as well. So let's start indefinite article. So let's see. Now our article is further divided into two parts, that is indefinite article and definite article. So let's study the first one. What is indefinite article? Indefinite articles are a and, right? A and. Let's see what is it. They are used before singular countable noun. They are used before singular countable noun, right? So a और and जो होते हैं वो singular countable noun के पहले use होते हैं, because they always give what, or they always specify noun as one, right? तो हमेशा वो किसकी क्वांटिटी बताती है या नाउन की किस कैटेगरी में क्वांटिटी बताते हैं? वन में, right? So they tells us about the quantity. They tells us about every time they tells us about the quantity of a noun, and in which sense? In the sense one, right? So they are used before singular countable noun for unspecific things. Over here I have also written in bracket, you can see, for unspecific things. That means a and singular countable noun के पहले तो यूज होता ही होता है, बट वो अनस्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज होता है. मतलब हम किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर नाउन या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात नहीं करते हैं जब हम इन दोनों को यूज करते हैं. ये दोनों अनस्पेसिफिक थिंग्स के लिए या नाउन के साथ यूज होता है. मतलब हम जिसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते या स्पेसिफिक या पर्टिकुलरली उसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं. ऐसे नाउन्स के पहले क्या यूज होता है? ए एंड. दैट मीन्स फॉर अनस्पेसिफिक थिंग्स. दैट मीन्स द थिंग्स और द नाउन्स व्हिच आर यूज्ड जनरली, राइट? ए इज यूज्ड before noun starting with consonant sound, right? तो a जो है, आर्टिकल a जो है वो किसके पहले यूज होता है? और नाउन के पहले, जो कि स्टार्ट होता है किस साउंड से? कॉन्सोनेंट साउंड से, राइट? तो दे आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड अपार्ट फ्रॉम a, e, i, o, u. इसके पहले क्या यूज होता है? and is used before noun starting with a vowel sound, right? So vowel sound में क्या क्या आते हैं, या and किसके पहले यूज होता है? a, e, i, o, u. These are the vowel consonants, and others are consonants, right? So they are vowels, and other remains as a consonant. So a is used before noun starting with consonant sound, and an is used before noun starting with a vowel sound, right? So this is the major difference between a and an. Otherwise they are both used before singular countable noun, and they are used before unspecific or unparticular things, right? Or you can say noun. So let's see the example. Example 1. A child is sitting on a chair, right? So over here I have written a sentence, a child is sitting on a chair. So you can see I have inserted or I have written a, that means an article. Over here also I have written an article, right? Child, which is playing the role of a noun, common noun, is helping verb, sitting action verb, on preposition, chair again common noun, right? So over here if I am going to see a and a, first of all this a is giving
the quantity of a noun, that is one. That means one child is sitting on one chair, right? So over here, one is specifying the quantity one, as well as it is also getting used, means it is not getting used, it is not specifying a special child. That means a child में a child means that it can be any child. हमें नहीं पता है कि कौन सा बच्चा है, कोई पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ जनरली किसी भी बच्चे की बात हो सकती है कि एक बच्चा जो है वो चेयर पे बैठा है, और यहाँ पे भी चेयर जनरली कोई बात नहीं हो रही कि आयरन चेयर है या प्लास्टिक की चेयर है या ब्रांडेड चेयर है. जो भी है वो चेयर का मतलब है वो कोई भी चेयर हो सकती है, वुडन चेयर, इट कैन बी एनी चेयर. दैट मीन्स दिस ए is getting used and it is not specifying, right, which chair we are talking about. In this case also, which child, particularly which child we are talking about, it is not getting specified with this A. If A से specify नहीं हो रहा है. So A, that means giving the quantity first of all. A, like over here A and over here also A is an article. This is giving the quantity, that is one. That is how many child we are talking about? One. How many chairs we are talking about? One, right? And it is not specifying also, at the same time it is not specifying that which child we are talking about. A child means generally it can be any child. A chair means generally it can be any chair. So a child is sitting on a chair, that means non-specific. Over here the article A is not specifying which particular noun we are talking about, क्योंकि जिनके पहले वो यूज हो रहा है चाइल्ड और चेयर का, वो जनरली कोई भी हो सकता है, नॉट पर्टिकुलरली और नॉट पर्टिकुलर, राइट. लेट्स सी द सेकंड वन. एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल. तो एन एलिफेंट, दैट मीन्स अगेन एन यूज हुआ है यहाँ पे. एलिफेंट क्या है? इट इज द नाउन यू कैन से, राइट. इज हेल्पिंग वर्ब, इज अगेन you can say article, right? It is an again article. Big is an adjective, right? And animal is a again common noun. So again you can say over here A has been used, over here an has been used. So an और A क्या कर रहे हैं? Again they are specifying the quantity one, right? और an जो है वो particularly मतलब किसके पहले अभी यहाँ पे नाउन एलिफेंट के यूज, एलिफेंट के पहले यूज हुआ है. तो एलिफेंट अगर बात करें तो हम सारे हाथियों को एलिफेंट बोलते हैं. कोई जनरली अगर हम यहाँ पे किसी एलिफेंट का नाम लिख दिए होते, मान लो कोई भी नाम होता है, जैसे एलिफेंट का कहानियों में आपने नाम सुना होगा, तो अगर कोई यहाँ पे नाम होता तो हम उसके पहले क्या करते, शायद हम दा यूज कर रहे होते, बिकॉज तब हमारा वो जो एलिफेंट का नाम होता है वो पर्टिकुलर होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल द जम्बो. तो जम्बो यहाँ पे अगर एलिफेंट का नाम होता है तो दा लगाते. क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलरली किसी एक एलिफेंट जिसका नाम जम्बो है उसकी बात कर रहे हैं. बट क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट यूज हुआ है जो कि जनरल वर्ड है, क्योंकि हम सारे हाथियों को क्या बोलते हैं, एलिफेंट ही बोलते हैं, दैट इज वाई एन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो एन क्या है? पहली बात तो क्वांटिटी बता रहा है, कितनी क्वांटिटी है, वन. और जनरली एलिफेंट को ये एक्सप्रेस कर रहा है. दैट मीन्स इट इज शोइंग दैट ओवर हियर एलिफेंट हैज बीन यूज्ड इन अ जनरल वे. तो दैट इज वाई. और ई क्यों है यहाँ पे? ई जो है वो है आपका वोवल साउंड आ रहा है एलिफेंट, ठीक है. तो इस वजह से हमने यहाँ पे एन का यूज किया है. तो एन का यूज करने का हमारा 3 रीजन है. पहला, इट इज शोइंग द क्वांटिटी 1. सेकेंड, एलिफेंट की जो एलिफेंट का जो वर्ड है स्टार्टिंग में ई है वो वोवल में है, इसलिए हमने एन यूज किया है. और दूसरा ये नॉन स्पेसिफिक, राइट. इज अ बिग एनिमल. तो इज अ बिग एनिमल, अगेन बिग मतलब किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, ठीक है. और किसी ऐसे तरीके से बात नहीं हो रही कि हम बिग को कोई नाम दे रहे हैं, कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं. दैट इज वाई दिस ए इज ऑल्सो गेटिंग यूज्ड एज एन आर्टिकल ए. और बिग भी है, जो बी है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग ए. तो अगेन दिस एन एंड दिस ए इज नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग. एलिफेंट भी जनरली यूज हो रहा है इसलिए हम एन लगा रहे हैं, और बिग भी जनरली, बिग एनिमल मतलब ये दोनों अगर बात करें, एनिमल दैट में ये पूरा अगर बात करें तो वहाँ भी वो जनरली यूज नहीं, मतलब जनरली एज अ जनरल यूज हो रहा है. या फिर बिग एनिमल दोनों साथ अगर बात करें तो बिग एनिमल जनरल तरीके से यूज हो रहा है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग राइट. सो these two examples were the articles of related to indefinite article. Let's see the second one, that is definite article. Now what is definite article? Definite article you can see over here I have written the. और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है, ठीक है.
तो इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये जो दा होता है वो यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, वो नाउन जो कि हम काउंट कर सकते हैं। इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल एज वेल, एंड ऑल्सो विद अनकाउंटेबल नाउन, और कई बार अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। आगे देखते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट सम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाउन। और दा किस लिए यूज होता है? दा हमारा यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं, जनरली या जनरल सेंस में हम उस नाउन के बारे में बात नहीं करते हैं, राइट। तो हम किसके बारे में बात करते हैं? दा तभी लगाते हैं जब हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या करते हैं स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर एंड द प्रिंसिपल इज इन द क्लास, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे दा मैंने लिखा हुआ है, तो द टीचर्स, इसका मतलब है मैं जनरली टीचर, सारे टीचरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हीं टीचरों की बात कर रहा हूँ जिनको मैं देख सकता हूँ कि वो कहाँ पे हैं, क्लास में, ठीक है। या मैं उसी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ जिसको मैं देख सकता हूँ कि वो कहाँ पे हैं, क्लास में, ठीक है। तो इसलिए मैंने द टीचर्स लगाया और द प्रिंसिपल लगाया और फिर द क्लास भी लगाया। इसका मतलब है ये भी हो सकता है स्कूल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, पर मैं उसी क्लास की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये टीचर्स और प्रिंसिपल अवेलेबल, राइट। तो इसलिए वो क्लास भी स्पेसिफिक हो गई, प्रिंसिपल स्पेसिफिक है, व्हाई, बिकॉज he is the only principal or she is the only principal who is right now inside that class, and these teachers also particular or specific for the speaker who is able to see that these teachers are in the class, right। तो यहाँ पे तीनों मेरे लिए क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए, मतलब पर्टिकुलर हो गए, कि मैं उन्हीं टीचर्स की बात कर रहा हूँ। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि टीचर्स हैं, बट मैं उन्हीं टीचर्स की बात कर रहा हूँ और उन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ या उस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ जो कि उस एक पर्टिकुलर क्लास में अभी हैं, राइट। So that is why this the is specifying that about whom I am talking about। अगर मैं ये सेंटेंस किसी को बोलूँगा, ठीक है, कि the teachers and the principals are in the school, right। So the teachers and the principal is in the school, तो और is in the class। तो इसका मतलब है ये जनरली पता चल रहा है उस लिसनर को भी कि मैं किस टीचर और किस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। सेकेंड, the children are dancing on the stage, right। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता था कि children are dancing on the stage, right। तो कोई गलती नहीं होती, बट मैंने जब डा लगा दिया, इसका मतलब है मैं अब उन्हीं चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ, मतलब उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि स्टेज पे क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टेज एक ही होगा, पर्टिकुलर एक स्टेज की बात हो रही है, वो स्टेज की बात हो रही है जहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं, और उन बच्चों की, सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात हो रही है जो बच्चे डांस कर रहे हैं, राइट। तो द हमने यहाँ पे लगाया, द क्यों, बिकॉज इट इज स्पेसिफाइंग कि हम किस बच्चों की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर वहाँ पे मान लो जहाँ पे स्टेज है वहाँ पे 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों में से 30 बच्चे डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे लिए 50 बच्चे क्या हुए, वो मेरे लिए 50 बच्चे तो चिल्ड्रन हैं, बट मैं उन्हीं 30 बच्चों की बात कर रहा हूँ जो उस टाइम पे स्टेज पे डांस कर रहे हैं। So for me, those 30 children are particular or specific. So the children are dancing on the stage. So on the stage का भी मतलब है कि हो सकता है कि कोई particular stage बनाया गया हो जहाँ वो डांस कर सकते हैं, तो on the stage. So the children are dancing on the stage. That means the जो stage है वो भी specific है और जो children है वो भी specific है, right? So class, with these two examples under the heading definite article, with these two examples under the heading indefinite article, we have covered the article that is one of the type of determinant. So class, let's see the second type of determinant, that is demonstrative determinant or adjective, right? That means demonstrative determinant or demonstrative adjective. So let's see, they are the words which point out the noun. So what are they? They are the words demonstrative determiners, right? Determiners are the words which point out the noun. जो कि किसको point out करते हैं, किसी ना किसी noun को sentence में. The speaker is talking about, ठीक है, और जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा होता है उन्हीं नाउन को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। Is talking about maybe nearby him or far from him.
हो सकता है कि ये नाउन उससे दूर हो या उसके पास हो, पर वो इन वर्ड्स को यूज करके इन डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करके क्या करता है, उन नाउन्स को पॉइंट आउट करता है ताकि वो दूसरों को दिखा सके या बता सके कि वो किस नाउन के बारे में अपने सेंटेंस में बात कर रहा है, वो नाउन उसके पास में है या नाउन उससे दूर है, राइट। तो देखते हैं, नाउ व्हाट आर दे means what are these words? This, these, that, those, right? So these are 4 words which fall under the category of demonstrative, determinative or adjective, right? So this, अब इसको मैंने कैटेगराइज किया है कि ये कैसे और किस तरीके से यूज होता है। तो this before singular noun for nearby object. तो this जो होता है यूज होता है किससे पहले, सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है। जो दिस होता है वो सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है, और कहाँ के लिए, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है। नियर बाय ऑब्जेक्ट मतलब जो स्पीकर जो बोल रहा है, जिस नाउन को पॉइंट आउट या रेफर कर रहा है, वो नाउन उसके पास होता है, और वो किस कैटेगरी, किस फॉर्मेट का होता है, किस कैटेगरी में या किस नेचर का होता है, वो सिंगुलर नाउन, राइट। तब हम क्या यूज करते हैं, दिस, उस नाउन के पहले दिस। दीज ये यूज होता है बिफोर प्लूरल नाउन, राइट। तो दीज जो वर्ड है, दीज, ये वर्ड यूज होता है प्लूरल नाउन के पहले, और फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये भी नियर बाय ऑब्जेक्ट के, ये दोनों नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, बट एक यूज होता है सिंगुलर नाउन के पहले और दूसरा यूज होता है प्लूरल नाउन के पहले, राइट। अब आते हैं, देखते हैं दैट। दैट जो है वो है सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है। दैट जो है वो जिसकी तरह ही सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है, बट फॉर फार ऑब्जेक्ट, मतलब दूर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है क्या, दैट, ठीक है। सिंगुलर नाउन के पहले तो यूज होता है, बट किसके लिए, जो ऑब्जेक्ट स्पीकर से दूर होते हैं, राइट, या जो नाउन हमसे दूर होते हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए या उनको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट, पर हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले। दोस्त, अब ये यूज होता है प्लूरल नाउन के पहले, ठीक है। दोस्त प्लूरल नाउन के पहले यूज होता है, और फॉर ऑब्जेक्ट, और ये भी किसके लिए, फार ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट या जो नाउन हमसे दूर होते हैं उनके पहले हम दोस्त का यूज करते हैं, बट बिफोर प्लूरल नाउन, राइट। So let's see with or understand these things with examples. Example 1. This house is mine, right? So I have written this house is mine. इसका मतलब है this क्या है, ये demonstrative adjective है या demonstrative determinant है। अब demonstrative क्यों? क्योंकि ये point out कर रहा है। क्योंकि किसको point out कर रहा है? House को। इसका मतलब है noun को point out कर रहा है। तो this जो है वो demonstrative हो गया पहली बात तो, ठीक है? Demonstrative, राइट। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। हो सकता है कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन हो कि सर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, उसको आप ध्यान देना। तो यहाँ पे दिस जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, इस वजह से ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, पॉइंट आउट करने, ये पॉइंट आउट करने की वजह से ये पॉइंट आउट कर रहा है ना, किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हाउस को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस वजह से ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। और क्योंकि इसके बाद जो लिखा है वो क्या है, वो नाउन है, इसका मतलब है दिस वर्ड is giving more information about this noun or house you can say, right। Again, this जो है वो यहाँ पे point out कर रहा है, इस वजह से ये demonstrative कहला रहा है। अब लिखा किसके पहले है, ये noun के पहले लिखा है, that means somewhere this word this is giving some information about this house or you can say about this noun, right। So that is why it is also getting known as adjective, right। So totally it is getting known as demonstrative adjective or you can say determinant। और determinant भी कैसे, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है noun से पहले, राइट। और कल हमने determinant या previous वीडियो में जो हमने determinant का definition पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कि they always come before the noun, right। they can never or they cannot be written anywhere in the sentence, right। so they always come before the noun in a sentence। So this is coming where, before the noun, right। and before the noun, when it is coming or as it is coming before the noun, it is giving more information about this noun, that is house। ये किसका house है, मतलब कौन सा house है, ये घर है या ये house है, तो इसका मतलब है this अकेले कहाँ पे फॉल कर रहा है, demonstrative में।
और क्योंकि ये हाउस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इन सारे में से कौन सा हाउस, ये वाला हाउस, तो इसका मतलब है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बिकॉज इट इज गिविंग सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस हाउस कि ये वाला घर मेरा है, राइट। तो मेरा, अब ये वाला घर कैसे पता चला कि मेरा है, बिकॉज इट इज गेटिंग नोन बाय दिस हाउस कि ये वाला घर, तो इस घर मेरा है, इसके बारे में कौन बता रहा है, दिस बता रहा है। तो जब वो पॉइंट आउट कर रहा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। जब वो इस माइंड तक के बारे में बता रहा है, मतलब माइंड तक पहुंच के इस घर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन माइंड के हिसाब से दे रहा है, तो वो एडजेक्टिव भी कहला रहा है। तो दैट इज वाई दोनों को जब हम इंक्लूड कर देंगे या कंक्लूड कर देंगे, तो दैट इज वाई ये दिस क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट, राइट। सो दिस हाउस इज माइंड, दैट मीन्स दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस गार्डन्स आर देयर। अब यहाँ पे दोस्त अगर की बात करें तो दोस्त क्या है, अगेन ये डिटरमिनेंट है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है किसको, गार्डन को, राइट। तो दोस्त सिर्फ अकेला, अगर पहला जो इसका ये फंक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है, एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि दिखा रहा है, बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि वो गार्डन, राइट। आर देयर। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ रहा है आर देयर, इसका मतलब है ये दोस्त जो पॉइंट आउट कर रहा है इस गार्डन को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस गार्डन के बारे में ये दे रहा है कि ये उनका है, देयर। तो गार्डन बिलोंग्स टू देयर, ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दोस्त, और पॉइंट आउट भी कौन कर रहा है, दोस्त। तो पॉइंट आउट करने की वजह से इट इज फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव, और क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोस्त देयर के बारे में दे रहा है कि किनका है, उनका है, दैट इज वाई देयर इट इज गेटिंग नोन एज, और it is also falling under the category of adjective, right? So totally demonstrative adjective. So over here, those is a demonstrative adjective. और यहाँ पे this यूज हुआ था nearby ऑब्जेक्ट के लिए, यहाँ पे those यूज हो रहा है far ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा देखें, that boy is my classmate। अब यहाँ पे that, again that क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव फॉल हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव अभी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, क्यों, क्योंकि दैट जो है वो दिखा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि किसको, बॉय को, और आगे भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहली बात तो दैट कहाँ पे और क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, क्योंकि बॉय के पहले लिखा हुआ है और बॉय को पॉइंट आउट कर रहा है। अब इस बॉय के भी बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, कौन दे रहा है, ये दैट ही दे रहा है, ये दैट दे रहा है कि ये लड़का क्या है, क्लासमेट है। तो ये इन्फॉर्मेशन, क्लासमेट वाली इन्फॉर्मेशन भी कौन दे रहा है, ये दैट ही दे रहा है कि ये लड़का मेरा क्लासमेट है, माई क्लासमेट। So that means that is not only pointing this noun, that is boy, but also giving the information that this boy is classmate or his classmate, right? तो ये दोनों information कौन दे रहा है, that दे रहा है कि पहली बात तो point out कर रहा है, इसलिए demonstrative है, और extra information classmate वाली दे रहा है, that is why adjective. So that is why that is falling under the category of demonstrative adjective, right? So class, with these three examples and with all this information about this, these, that, those, and with the definition, we have come to an end with the second type of determinant, that is demonstrative determinant or adjective, right? So class, let's see the third type of determinant, that is possessive determinant or possessive adjective, right? So possessive determinant or possessive adjective. Let's see what is it. They are the words used before singular and plural nouns, right? So they are the words which are used before singular and plural nouns. तो दोनों noun के पहले use होते हैं, singular या plural noun है, countable और uncountable noun, right? So possessive determinants or possessive adjectives are the words that are used before singular and plural nouns and countable and uncountable nouns to show the ownership or possession. So now possessive, अब इस वर्ड से भी पता चला होगा कि क्या दिखाता है, possessive या ownership. तो ये वर्ड जो होते हैं, जो कि सिंगुलर या प्लूरल नाउन से पहले यूज होते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं, वो दिखाते क्या है, दे शो द ओनरशिप और पोजीशन ऑफ द नाउन, राइट? दे शो द ओनरशिप और पोजीशन ऑफ एनी काइंड ऑफ नाउन. Now these are now the words are which comes under the category of possessive determinants or possessive adjectives. These words are my, his, her, their, yours, our, etc. Right?
So let's see example. Going through the example, let's understand what is it. Our house is too big, right? So our house is too big. इसका मतलब है ये R क्या है? Definitely it is showing the position, right? Definitely it is showing the position कि किसका घर है? हमारा घर है. तो और ये house से पहले आ रहा है, right? ये R जो है ये क्या दिखा रहा है? पहले तो पोजीशन दिखा रहा है. R मतलब मेरा या हमारा. और किसके पहले आ रहा है? ये हाउस जो है ये क्या है? ये नाउन है. और ये नाउन की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि हमारा हाउस कैसा है? इट्स टू बिग. दैट मीन्स ये बहुत बड़ा है. तो इस हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब इस हाउस को बता भी रहा है. इस हाउस की पोजीशन भी बता रहा है. तो पोजीशन बताने की वजह से ये कहाँ पे फॉल हो रहा है? पॉजिटिव, राइट? और क्योंकि इसी हाउस के बारे में ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि ये कैसा घर है या मेरा घर कैसा है? बड़ा है. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है किसके बारे में? नाउन के बारे में. और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या मॉडिफाई करने वाले वर्ड को भी हम क्या कहते हैं या वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. तो ये पॉजिटिव के साथ साथ किसका रोल प्ले कर रहा है? एडजेक्टिव का. दैट इज व्हाई इट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिटरमिनर. और डिटरमिनर क्यों? बिकॉज इट इज कमिंग अंडर द बिफोर द नाउन इन द सेंटेंस. सो दैट इज व्हाई अगर इस हिसाब से देखेंगे तो पॉजिटिव डिटरमिनर है. अगर मॉडिफायर के हिसाब से देखेंगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि पोजीशन दिखा रहा है. एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव. डिटरमिनर की बात करेंगे तो क्योंकि वो पहले आ रहा है किसके पहले? नाउन के पहले. तो ये पॉजिटिव डिटरमिनर हो जाएगा, राइट? तो आवर हाउस इज टू बिग. दैट मीन्स आर इज अ पॉजिटिव डिटरमिनर और पॉजिटिव एडजेक्टिव which is giving which is showing the ownership or possession, right? My brother lives in Delhi. So my क्या है? Again it is showing the possession or ownership, right? Brother क्या है? Common noun है, ठीक है? Live क्या है? Helping action verb है, and preposition and Delhi is an object, right? तो my brother lives in Delhi. अब ये my जो है वो अभी फिलहाल पहला कौन सा फंक्शन कर रहा है? किसका फंक्शन कर रहा है? पॉजिटिव का. और क्योंकि ये पहले किसके लिखा हुआ है? नाउन के पहले लिखा हुआ है. और ये नाउन से पहले लिखा हुआ है और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि मेरा भाई रहता कहाँ है? दिल्ली में. तो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये पता चल रही है कि ये कहाँ रहता है? दिल्ली में. तो माई जो है पॉजिटिव है और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस नाउन के बारे में, किससे पता चल रही? माई से ही पता चल रही है. दैट इज वाई इट इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिटरमिनर. And this my is a positive adjective or positive determiner, right? This is his coffee, right? और अभी जो यहाँ पे यूज हो रहा था जो नाउन वो किस कैटेगरी का था? किस नेचर का था? ये था सिंगुलर नाउन. हाउस क्या है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. ब्रदर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, राइट? अब दिस आया. दिस इज हिज कॉफी. तो दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अभी हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, पर क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए था क्योंकि हमेशा दिस दैट या दोस्त के बाद क्या आ रहा था? यहाँ पे आ रहा था नाउन. और नाउन आएगा इसका मतलब है नाउन के आने का मतलब है कि ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. इसीलिए ये डिमॉन्स्ट्रेट क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये पॉइंट आउट करेगा. और क्योंकि इस नाउन के बारे में नाउन से पहले आ रहा है या इस नाउन के इंफॉर्मेशन भी देगा तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. पर क्योंकि अगर इस दिस की बात करें तो इस दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा है. इस दिस के बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, राइट? तो इसलिए ये दिस अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसकी तरह नहीं रहेगा. ये अब हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट? तो यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर नहीं है. यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Why? Because it is not coming before any noun. It is coming before the verb, that is helping verb. So this is his coffee. अब his coffee इसका मतलब है his क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है? पोजीशन दिखा रहा है. और कॉफी क्या है? नाउन है, राइट? तो ये नाउन के बारे में, और ये कैसा नाउन है? ये है अनकाउंटेबल नाउन, राइट? अनकाउंटेबल नाउन है ये क्योंकि कॉफी आप काउंट कर नहीं सकते हो, तो अनकाउंटेबल नाउन है. अगर यहाँ पे कप ऑफ कॉफी लिखा होता है तो वो काउंटेबल होता है, बट यहाँ पे सिर्फ कॉफी लिखा है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. तो दिस इज हिज कॉफी. इसका मतलब है हिज क्या कर रहा है? इट इज शोइंग द पॉजिटिव और पोजीशन और ओनरशिप, एंड कॉफी बीइंग अ नाउन
That is why it is falling under the category of possessive determinant or possessive adjective, right? कि ये किसकी कॉपी है? इसकी कॉपी है, right? Your car is very expensive. Again, your आ रहा है, इसका मतलब है, और your क्या है? ये possessive है, क्योंकि ownership या possession दिखा रहा है. फिर car क्या है? Common noun है, right? Noun है. Is क्या है? Verb है. Very is an adverb you can say. Big क्या है? Is an adjective. ये कार कैसी है? बहुत बड़ी है, right? तो योर क्या है? योर जो है ये पोजीशन, मतलब पोजीशन या ओनरशिप दिखा रहा है, ठीक है? किसके पहले आ रहा है? नाउन के पहले आ रहा है, ठीक है? और ये वर्ड योर ही है जो कि किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? कार के बारे में. और क्या इन्फॉर्मेशन है? कि बहुत बड़ी है. तो इस वजह से योर जो है पॉजिटिव दिखा रहा है, और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है, इसलिए ये दूसरा कौन सा काम कर रहा है सेंटेंस में? एडजेक्टिव का. तो पॉजिटिव डिटरमिनेंट या पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट? So class, with these 4 examples under the heading positive determinants or adjective with the definition as well as these words, we have come to an end. The third type of determinants, that is positive determinants or adjective. So class, your homework for today is that you all have to write down this video's explanation, contents and the contents given in your English guidebook in your classwork copy, right? So whatever the explanation I have done within this video, right, those contents as well as the content given in your English guidebook, right, so you have to write down both the contents together in your classwork copy, right? Solve the exercises 7.1 and 7.2, question 1 to 3, right? 7.1 whole exercise, only 2 questions are given, that means both the questions. And in 7.2, questions 1 to 3, you have to solve these exercises in your book, right? That is English guidebook. In your book, and learn all the things taught till now, right? So what you have to do is, after writing down all the things, after doing the exercises, you have to learn all the things that have been taught or that had been taught up till now from my side to you all, right? So in our next video, we will again go through the same topic, that is types of determiners. Till then, stay safe and take care. Thank you.